Assalamu alaikum. Today I will be talking about the test day instructions. So I will be talking about how the tester will give you instructions, what the wording is, and what terminology they use. Okay. For those who speak English, I will be just following this text that I've written up already. And usually when my clients are going for the test, I usually forward this to them so they can at least have an idea of how, actually not just before the test, also for some people who are going to start practicing at home. I send these my notes so the person at home, the supervisor driver at home, can help them familiarize with them these instructions. So I usually ask them to get your supervisors to use the same terminology, so on the day of the test it will be easier. ठीक है, तो आज जो वीडियो मैं कर रही हूँ उसके टेस्ट इंस्ट्रक्शन के बारे में, क्योंकि एट टाइम्स इट फील्स लाइक मोर लाइक एन इंग्लिश टेस्ट दैन अ ड्राइव टेस्ट. ठीक है, कई दफ़ा लगता है कि ये ड्राइविंग टेस्ट कम है पर इंग्लिश का टेस्ट ज़्यादा है. तो जस्ट टेक इट ईजी, यानी कि ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है. बस आपने ऐसे सोचना कि वो आपकी ना हेल्प करने हैं, गाइड करने हैं, कि आपको बता रहे हैं कि कहाँ पे जाए. क्योंकि जब भी चॉइस होती है ना हमारे पास, so when there's a choice of doing a few things in a test condition, you'll be puzzled on which lane to take, which way to turn. Yani if there's two lanes, which should I take? So just take it as if they are helping you along. ठीक है, तो वो आपकी ना आसानी के लिए, मुश्किल करने के लिए नहीं है. ठीक है, आपका माइंड बना रहे हैं अब, यानी कि आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है. बस आप जैसे वो कह रहे हैं बस आप उनको तरीके से करके दिखाते जाएँ. बेसिकली ये है. ठीक है, और ऑब्वियसली उन्होंने एक राउट सेलेक्ट किया हुआ है जिसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी स्किल्स को देख सकें कि वो कैसी हैं. जैसे स्टॉप साइन है, गिव वे है, राउंड अबाउट है, ट्रैफिक लाइट्स हैं, लेन चेंजेस हैं. तो डिफरेंट डबल लेन्स हैं, कई दफ़ा 3 लेनें भी होती हैं. तो वो बेसिकली आपके ना चेक कर लें कि वे यू आर सेफ टू बी ड्राइविंग बाई योर सेल्फ ऑन द रोड, कि आप अकेले ड्राइविंग कर सकेंगे या नहीं. ठीक है, तो उसको ना, यानी कि उसको मुश्किल ना समझें जिस तरह वो आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं. पर क्योंकि कई दफ़ा इंटरसेक्शन इतने बड़े होते हैं कि उनको आपको ना एग्जैक्टली बताना पड़ता है. तो इंशाल्लाह ताला, और कई दफ़ा यानी कि वो आपके लिए आसानी करें. और कई दफ़ा क्या होता है कि जैसे स्पेशली पाकिस्तान ओवरसीज से जो माइग्रेंट्स आते हैं, समटाइम्स द माइग्रेंट्स फाइंड इट हार्ड टू अंडरस्टैंड द एक्सेंट. So in that case, if you feel that you're going to be having difficulty in understanding the tester, then what you do is you also get permission, ask them, let the tester be aware that your instructor will be using the hand signals and they will be repeating the instruction. And I've done that nearly all the times, most of the time actually. And sometimes I've done it so many times, and on the times when I don't need to, I still do the hand signal. And it's funny, everyone just laughs. But sort of gotten used to repeating the instruction and using my hand signals. And that's not only because of the accent. Some people literally, and they mix up their left and rights, and it's nothing to do with the English language. They, even in their own tongue, they will mix up their left and rights. So it's good if your test instructor can help you along by using the hand signals and repeating the instructions. Okay, once you're in the car, make sure you fasten your seatbelt before you get the car ready for the pre-drive check. So, the accessories on and all that. यानी कि जैसे आप कार में बैठेंगे ना, तो अपनी बेल्ट पहले लगा लें. आमतौर पे जब टेस्ट पे जाते हैं तो टेस्टर ना थोड़ी देर बाद आते हैं, यानी कि फ्यू मिनट्स आफ्टर. पर कई दफ़ा वो आपके साथ ही अगर आ गया ना, तो मेक श्योर, यानी कि कार को ऑन करने से पहले आप अपनी सीट बेल्ट लगा लें, क्योंकि क्या होगा कि बाद में आप भूल जाएंगे. ठीक है, तो वही, यानी कि अगर चाबी वाली कार है, यूल टर्न द की ट्वाइस. अगर आपके पास वो बटन वाली कार है तो आप बटन को 2 दफ़ा प्रेस करेंगे विदाउट डिप्रेसिंग द ब्रेक. ठीक है, वो तो आप मेरा दूसरा वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें मैंने प्री ड्राइव चेक, सेफ्टी चेक के बारे में बताया हुआ. ठीक है, अच्छा, आफ्टर द प्री ड्राइव चेक, व्हेन वंस द LTO, यानी कि लाइसेंस टेस्टिंग ऑफिसर कार में आके बैठ गया, उन्होंने अपनी बेल्ट लगा ली है, तो फिर वो आपसे कहेंगे कि व्हेन यू आर रेडी यू कैन स्टार्ट द कार and heads toward the exit, or they will direct you, which way to take. तो बस वो, यानी कि कार स्टार्ट करके make sure you start the car. Yeah, many people, they forget to start the car and they'll put the car in drive and the car won't go. Okay, then we can leave that for next different video, but this video is for directions. So just बस एक चीज़ बता दूँ, just remember, जो कुछ वो आपको ना पहले कह चुके हैं जब आप
बिग रोड के अंदर जाते हैं टेस्ट से पहले, अपने आप को प्रेजेंट करते हैं अपॉइंटमेंट के लिए, तो आपको कहते हैं ऑन द रोड आई विल इंस्ट्रक्ट यू टू टर्न लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। इफ़ आई डोंट से एनीथिंग जस्ट फॉलो द नेचुरल कोर्स ऑफ द रोड, obeying all the road rules, road signs, road markings, conditions, traffic, signals and everything, ठीक है। यानी कि आपसे कहते हैं कि हम आपको लेफ्ट एंड राइट का सिर्फ कहेंगे, अगर हम कुछ नहीं कह रहे तो बस आप सीधा चलते जाएं, राउंड अबाउट आ रहा है सीधा जाएं, ट्रैफिक लाइट्स आ रही है सीधा जाएं, जो भी आ रहा है, या अगर वो मॉडिफाइड इंटरसेक्शन है, वो जो फनी वाली टी होते हैं, तो स्ट्रेट लाइन को फॉलो करें कि जिस तरफ नेचुरल कोर्स ऑफ द रोड जा रहा है तो उसको फॉलो करना है, ठीक है। तो अब आगे हैं कैसे वो इंस्ट्रक्शन देते हैं आपको टेस्ट में, ठीक है। तो अगर सिंगल लेन है दोनों तरफ तो वो आपसे कहेंगे कि एट दी एंड, अगर कुछ नहीं कह रहे तो ऑब्वियसली आप सीधा जाएंगे। उसके बाद अगर वो कह रहे हैं एट दी एंड ऑफ द स्ट्रीट टर्न लेफ्ट, तो इसका मतलब बिल्कुल एंड पे जाएं, वो टी इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो टर्न लेफ्ट यानी कि सिंगल लेन इधर है, सिंगल लेन उधर है, या वो आपसे कहेंगे टर्न लेफ्ट इन टू द लेफ्ट लेन। अगर उधर दो लेन हैं जिधर आपने जिस रोड पे टर्न करना है, यानी कि जिस लेन में आप पहले से हैं उधर एक लेन है, तो जिसमें टर्न करना है उधर दो लेन है, ठीक है। तो उधर भी कहेंगे टर्न लेफ्ट इन टू द लेफ्ट लेन या टर्न लेफ्ट इन टू द राइट लेन। और बाय लॉ when one lane is turning into multi-lane, you can turn into any lane with the same left signal, okay। या फिर कहेंगे at the end of the street turn right, इसका मतलब है दोनों तरफ सिंगल लेन हैं, यानी कि सिंगल लेन दोनों तरफ है। अगर दूसरी तरफ एक लेन है और दूसरी तरफ दो लेन हैं, तो फिर वो कह सकते हैं at the end of the street turn right into the right lane या turn right into the left lane, ठीक है, सिंपल है, ठीक है। तो ठीक है, अगर ट्रैफिक लाइट्स हैं तो कहेंगे एट द ट्रैफिक लाइट्स एट द ट्रैफिक सिग्नल्स टर्न लेफ्ट, ठीक है। अगर उधर स्लिप लेन है दैन यू मस्ट टर्न लेफ्ट फ्रॉम द स्लिप लेन। फिर उसमें भी वही आ जाता है कि अगर उस तरफ दो लेन्स हैं, अगर सिंगल लेन है तो फिर वो कहेंगे इनटू द लेफ्ट लेन, अगर दो लेन्स हैं या तीन लेन्स हैं तो फिर कहेंगे इनटू द राइट लेन, लेफ्ट लेन या इनटू द मिडल लेन, ठीक है। तो बस आपकी आसानी के लिए वो करने हैं एट द ट्रैफिक लाइट्स टर्न राइट, ठीक है। अगेन सेम थिंग, अगर एक ही लेन है तो बस एट द ट्रैफिक लाइट्स टर्न राइट, ठीक है। तो अगर उसमें मल्टी लेन है तो फिर वही कहेंगे इन टू द राइट लेन, इन टू द लेफ्ट लेन या द सेंटर लेन, ठीक है। तो अगर एट द ट्रैफिक लाइट्स कह रहे हैं तो ट्रैफिक लाइट्स पे जाएंगे, उससे पहले या उसके बाद में, उससे पहले कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एट द ट्रैफिक लाइट्स roundabout turn right from the right turning lane, ठीक है। अगर ये कह रहे हैं ना इंस्ट्रक्शन at the traffic lights or roundabouts turn right from the right turning lane, तो इसका मतलब है जिस रोड पे आप हैं ना उधर दो lanes टर्न करनी है। So the road that you are on has two lanes turning right at the same time. Again, they're making it easier for you to choose. They made the decision for you already. यानी कि दो लेन्स हैं, ठीक है, there are two lanes, so you're turning right from the right turning lane, ठीक है। really important, जो पहली चीज़ अंडरस्टैंड करनी है ना कि जो पहला डायरेक्शन आता है ना कि टर्न राइट, यानी इसका मतलब आपने उस गली में जाना है। फिर उसके बाद है फ्रॉम, क्योंकि दो लेन्स हैं, या तो आप राइट लेन से राइट जाएंगे या फिर लेफ़्ट लेन जो वो भी टर्न करिए राइट ही उससे जाएंगे। तो इसमें ऑब्वियसली आप जिगजैग नहीं करेंगे, आप अपनी करस्पॉन्डिंग लेन में जाएंगे, ठीक है। यहाँ द ट्रैफिक लाइट्स राउंड टर्न राइट फ्रॉम द लेफ्ट टर्निंग लाइन, ठीक है, सिंपल है। एक दफ़ा आपको समझ दे, यानी कि जब ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, तो नेक्स्ट क्या है कि एट द ट्रैफिक लाइट्स राउंड अबाउट टर्न लेफ्ट फ्रॉम द लेफ्ट टर्निंग लाइन। तो फ्रॉम वो बोलते हैं ना, तो इसका मतलब है जिधर आप आ रहे हैं उधर दो लेन्स है, ठीक है। पहले वाला जो था कि इनटू, यानी कि इस तरफ एक लेन है आगे दो हैं। अब ये जो है कंडीशन इसमें यह है कि इसमें पहले से ही दो लेन्स टर्न करनी एट द सेम टाइम। तो अगेन वो आपकी आसानी करने हैं कि एट द ट्रैफिक लाइट्स राउंड अबाउट टर्न लेफ्ट फ्रॉम द लेफ्ट टर्निंग लेन या टर्न लेफ्ट फ्रॉम द राइट टर्निंग लेन, सही है ना। तो टेस्टर की दफ़ा कहते हैं कि Tester just say continue straight ahead or at times don't say anything which is understood to be straight, यानी कि वो जो पहले कहा था कि अगर वो कुछ नहीं कह रहे तो इसका मतलब है सीधे जाएं, ठीक है। कई दफ़ा राउंड अबाउट पे वो कह देते हैं कि वी आर जस्ट गोइंग स्ट्रेट थ्रू द राउंड अबाउट, ठीक है। तो या फिर वो कहेंगे कि वो
टर्न राइट और लेफ़्ट। अगर कुछ नहीं कह रहे तो सीधा चलते जाएँ। अच्छा, राउंड अबाउट पे एक और चीज़ है कि टेस्टर जो है ना वो जीपीएस की तरह नहीं इस्तेमाल करते टर्मिनोलॉजी। यानी कि वो जैसे जीपीएस में आता है ना, राउंड अबाउट आ रहा है तो कहते हैं एट द राउंड अबाउट turn, take the first exit, or take the second exit or the third exit. राउंड अबाउट पे यानी कि जो टेस्टर हैं वो बस कहते हैं कि कुछ नहीं कह रहे तो सीधा जाएं, अगर कुछ कह रहे हैं तो कहेंगे या तो राउंड अबाउट टर्न राइट या टर्न लेफ्ट। पर ये इनका यानी कि दैट्स व्हाट दे यूज्ड टू डू। पर अब किसी वक्त तो लास्ट टाइम मेरा किसी का टेस्ट क्लाइंट का तो उसे टेस्टर ने उससे कहा था कि वी आर गोइंग स्ट्रेट थ्रू द राउंड अबाउट टेकिंग द सेकंड एग्जिट। ठीक है, तो यानी कि आपको ना दोनों टर्मिनोलॉजी के साथ ना फेमिलियर होना पड़ेगा। और यानी कि इसमें कोई मसला नहीं है। जिस और राउंड अबाउट पे जो स्ट्रेट होता है ना, कई दफ़ा फर्स्ट एग्जिट होता है, कई दफ़ा सेकंड होता है। ठीक है, डिफरेंट है। तो वही आपने देखना है कि ये कौन सा, यानी कि टी इंटरसेक्शन राउंड बार है या वो जो क्रॉस इंटरसेक्शन है वो क्या है। तो दोनों का ना आपको ना फेमिलराइज होना चाहिए। अच्छा, तो यू टर्न, अच्छा एक यू टर्न क्या है कि कहाँ से कह सकते हैं यू टर्न फ्रॉम द ब्रेक इन द मीडियन में कि यू टर्न, मेरा मैंने एक यू टर्न का वीडियो किया हुआ है, यू कैन चेक दैट एज वेल। I've done a U-turn video before earlier, so just have a look at that. But the terminology will be from the break in the median make a U-turn, or it could be from the slip lane make a U-turn, or at the roundabout make a U-turn. Where there is one more lane, तो वो आपको बताएंगे कि कौन सी लेन में जाना है। ठीक है, अगर जिधर ज़्यादा लेन है तो आपको राउंड LTO यानी कि टेस्टिंग ऑफिसर कहेंगे कि विच लेन। ठीक है, तो वे कहेंगे एट द ट्रैफिक लाइट्स मेक यू टर्न। सिंपल, क्योंकि तो एक ही लेन है, उस तरफ कोई मसला नहीं है। तो वे देयर इज मोर देन वन लेन दे विल स्पेसिफाई द लेन कि मेक यू टर्न इन टू द राइट लेन या मेक यू टर्न इन टू द लेफ्ट लेन। सही है। अच्छा, और क्या कहते हैं, एट द नेक्स्ट स्ट्रीट टर्न राइट और लेफ्ट। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी गली आ रही है। ठीक है, उर्दू में क्या होता है कि हम कहते हैं कि नेक्स्ट का मतलब होता है इसको छोड़ के अगली पे जाएं, पर ड्राइविंग टेस्ट में ये नहीं होता। ड्राइविंग टेस्ट में होता है कि जो भी आ रही है ना आपने उस पर टर्न करना है। ठीक है, at the roundabout turn left or right, where there is more than one lane they will tell you which lane to finish in। ठीक है, तो अगर दो लेन्स टर्न करनी है सेम टाइम पे तो आपको बताएंगे कहाँ से स्टार्ट करना है। जब आपने एक लेन से स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली दो लेन्स इकट्ठी टर्न करनी है, तो दूसरी साइड पे भी आप अपनी ही लेन में रहेंगे। अगर एक लेन है तो उसका कोई मसला नहीं है। अच्छा, जब उन्होंने आपसे लेन चेंज करवानी होती है ना तो वो कहते हैं व्हेन सेफ। जैसे वो कहेंगे ना व्हेन सेफ, तो आपको एकदम पता चल जाएगा कि ये लेन चेंज कह रहे हैं। ठीक है, तो जिधर भी 2 या मोर लेन्स हैं वो उधर आपको लेन चेंज का लाजमी कहेंगे। पहले स्टेज में तो इतना नहीं कहते, हार्डली कहते हैं। सेकंड स्टेज में 3-4 दफ़ा या 5 दफ़ा 3 दफ़ा लेन चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो लेन चेंज के कैसे करना है वो मैंने पहले ही बताया हुआ अर्लियर वीडियोज़ में, तो उनको जाके देख लें। ठीक है, फिर एक के पहला स्टेज जो ड्राइविंग का होता है ना, उसके बाद वो आपको ना साइड पे रुकवाते हैं। तो वेडिंग क्या इस्तेमाल होती है, वे सेफ, पुल ओवर एंड स्टॉप एट द कर्ब एंड देन मेक द कार सेफ। मीन्स पार्क द कार, पी में डालने और हैंड ब्रेक ऑन कर दें, इसका ये मतलब होता है। तो ये बेसिकली होता है कि सेफ साइड पे रुक जाएं ताकि वो आपका स्कोर एडअप कर लें। जब वो आपका स्कोर एडअप कर लेते हैं, होपफुली दे विल से यू हैव पास द फर्स्ट स्टेज एंड नाउ कंटिन्यू अहेड व्हेन सेफ एंड मूव इनटू वी आर गोइंग इनटू द सेकंड स्टेज। अच्छा, अगर आपके पॉइंट्स ज़्यादा नहीं है ना, यानी कि इफ़ यू लॉस्ट टू मेनी पॉइंट्स, तो फिर वो आपसे कहेंगे सॉरी यू हैव पास द फर्स्ट स्टेज, और तो फिर इंस्ट्रक्टर विल हैव टू ड्राइव बैक टू विक रोड्स। ठीक है, अच्छा, ऑन अ कंटिन्यूस रोड योर मॉडिफाइड इंटरसेक्शन विच इज़ रियली अ टी इंटरसेक्शन, अगर हम सीधा जा रहे हैं दे विल बी नो इंस्ट्रक्शन और इट विल बी सेड फॉलो द रोड टू द लेफ्ट और फॉलो द रोड टू द राइट। ठीक है, यानी कि टी इंटरसेक्शन है पर उसका टॉप जो है ना थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, उसको कहते हैं मॉडिफाइड इंटरसेक्शन। गूगल करके देख लें, यूट्यूब पे भी डाल सकते हैं, आपको उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, just follow the natural course of the road and road marking. If it is said at the end of tunnel left or right, then you must indicate and give way. ठीक है, मॉडिफाइड इंटरसेक्शन का देख लें, क्योंकि काफ़ी लोग ना उसको ना कंफ्यूज कर देते हैं। और एक दफ़ा आपको उसकी डिज़ाइन समझ आ गया ना, यानी कि उसका जो सारा कैसे बना हुआ है, तो आपके लिए फिर आसान होगा।
और हर चीज़ ऑब्वियसली द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर, ठीक है। द मॉडिफाइड इंटरसेक्शंस आर नॉट हार्ड if you're looking at the road marking and road signs. They're pretty much like a T, normal T intersection with the top just bent, ठीक है। अच्छा, U-turn in the courts, तो उसमें यानी they usually say at the end of the street turn the car around, ठीक है। यानी कि वो कहते हैं एंड पे जाके कार का रुख मोड़ लें, वापस उसको मोड़ लाएं। तो इट कुड बी सिंपल यू टर्न, यानी कि बड़ा सा वो जो राउंड किस्म का यू टर्न होता है, बस गोलाई में आप लेते जाएं चलते जाएं। पर कई दफ़ा वो जो 3 पॉइंट टर्न की तरह करना पड़ता है, क्योंकि पार्क कार्स हैं या ये जो एंड ऑफ द रोड है ना, वो ना टी इंटरसेक्शन की तरह बना हुआ है, तो फिर हम मोर लेस 3 पॉइंट टर्न की तरह करेंगे। तो यानी कि आपने देखना होता है कि कैसे मैं करूँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि 3 पॉइंट टर्न करें, यू टर्न करें, पर यू टर्न में अगर पार्क कार्स है तो फिर आपको 3 पॉइंट टर्न में करना पड़ेगा, सही है। अच्छा, तो जब उन्होंने आपसे वो 3 पॉइंट टर्न का कहना है, ठीक है, वो जो 3 पॉइंट टर्न है इसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ पहले, आपका वीडियो ऑलरेडी, इफ यू कैन हैव अ लुक एट इट। वो कहते हैं वे सेफ और फाइंड अ सेफ स्पॉट टू परफॉर्म अ 3 पॉइंट टर्न, ठीक है। एंड देन 3 पॉइंट टर्न आपकी मर्ज़ी, आपने कैसे करना है, रोड साइड पे करना है, कर्ब टू कर्ब, या किसी के ड्राइवे में जाके, और ड्राइवे जो राइट साइड पे है उसको इस्तेमाल करें। अगर उन्होंने आपसे कहना है रिवर्स पैरेलल पार्किंग करवानी है, तो फिर उसके लिए वो आपको बताएंगे, यानी कि इस कार के पीछे कलर बताएंगे कार का, ठीक है। यूजिंग दैट कार और पुल अप बिसाइड दैट कार एंड परफॉर्म रिवर्स पैरेलल पार्किंग, सही है। तो यानी कि वो आपको बताएंगे कि इस कार के पीछे आपने पार्किंग करनी है, कलर बता देंगे कि इसके पीछे करनी है। 3 पॉइंट टर्न के लिए आपकी मर्ज़ी, आप कहाँ करें, जिधर भी सेफ आपको लग रहा है, ठीक है। अच्छा, पहले क्या होता था कि वो इंस्ट्रक्शन देते थे कि अब नहीं देते, अभी फ़िलहाल तो काफ़ी देर होगी मैंने ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं सुना टेस्टर से, पर पहले वो कहते थे हाँ, तो यानी कि इट्स बेटर टू बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। एक दफ़ा कर लें, यानी कि आइडिया आपको जो बेसिकली, यानी कि वो आपका माइंडसेट देखते हैं कि आपको कुछ समझ आ रही है कि नहीं। कि पहले क्या होता था कि आप राइट लेन में होते थे और आपको वो कहते थे कि एट द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट्स टर्न लेफ़्ट, तो उसमें पहले सबसे चीज़ क्या होती थी कि लेन चेंज खुद ही से करें, ठीक है। लेफ़्ट लेन से तो आप यानी कि आप राइट लेन से कैसे लेफ़्ट जाएंगे, लेन चेंज करेंगे तो जाएंगे ना। तो लेन चेंज जितनी जल्दी हो सकती है कर लें, ठीक है। या फिर वो कहेंगे कि एट द आप लेफ़्ट, यू विल बी आस्क्ड टू टर्न लेफ़्ट एट द लाइट्स एंड यू विल बी इन द राइट लेन, या राइट लेन में, पर वो लेफ़्ट का कह रहे हैं, या आप लेफ़्ट लेन में तो वो राइट का कह रहे हैं। तो बेसिकली इसमें ये होता है कि लेन चेंज करें एज सून एज यू कैन, और उसके बाद देखें कि लाइट्स कहाँ है और कहाँ से टर्न करना है, ठीक है। फ्रॉम द सेकंड सेट ऑफ लाइट्स टर्न राइट, ठीक है, या टर्न लेफ्ट। इसका मतलब क्या है कि सो विद दिस इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द सेकंड सेट ऑफ लाइट्स टर्न लेफ्ट और राइट, इट मीन्स द लाइट्स आर वेरी क्लोज टुगेदर, that if they wait for you to cross the first lights, it won't be possible for them to give you instruction that will enable you to safely merge into the turning lane, because the lights are way too close, yeah. So they will say from the second set of lights turn right, or from the second set of lights turn left, यानी कि अब जो लाइट आ रही है उस पर नहीं जाना, उससे साथ ही जो लाइट्स हैं आपने उधर टर्न करना है, ठीक है। हाँ, अच्छा जी, अभी ना मैंने अपलोड करने से पहले ये वीडियो खुद से देखी है और मैंने रियलाइज़ किया कि काफ़ी चीज़ें जो ना मैंने मिस कर दी हैं, तो मैं ना उनको ना मैं ऐड करने लगी हूँ। सो आई रियलाइज दैट आई left some of the important instructions out after watching the video before uploading. So I will continue on from where I left off. So where one lane branches out to 2 lanes, यानी कि पहले एक लेन थी और आगे 2 बन गई हैं, तो उधर इंस्ट्रक्शन होगा कि इंस्ट्रक्शन will be when the road divides into, please stay in the right lane or stay in the left lane, ठीक है। तो जब when one lane is turning into 2 lanes, you don't need to indicate left indicator or right indicator. It's just the way you branch out. The person behind you will know which lane you're taking. If you are going to do the indicator, just a quick signal right or quick signal left and then turn it off, yeah, straight away, because otherwise you won't turn off by itself like with the lane changes. तो अगर आपने इंडिकेट करना है उस सूरत में तो आप कर सकते हैं, बट साथ ही उसको ऑफ भी कर दें, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन होगा कि जब व्हेन द रोड डिवाइड इनटू स्टे इन द राइट लेन और द लेफ्ट लेन, ठीक है। अगेन वही चीज़ कि आप कंफ्यूज ना हो कि मैं कौन सी लेन लूँ, यानी कि आपको माइंड बनाने में देर लग जाएगी, तो आपको पहले से बता रहे हैं कि आप आराम से ना इस लेन में चले जाएँ।
फिर होगा at the traffic lights where it is a single lane and after the intersection divides into 2 lanes. The instruction will be at the traffic lights going straight into the left lane या going straight into the right lane. Again वो आपके लिए आसानी कर रहे हैं कि आप इसी में ना पजल हो जाए कि लेन कहाँ जा, कौन सी लेन में मैं जाऊँ. तो ठीक है, अगर वो राइट लेन कह रहे हैं तो सीधा आप राइट लेन में चले जाएंगे, अगर लेफ़्ट में कह रहे हैं तो लेफ़्ट में चले जाएंगे. अगेन द पर्सन बिहाइंड यू विल नो विच लेन यू टेकिंग डिपेंडिंग ऑन कि आपने कैसे कार की एंगल को कैसे आपने चेंज किया हुआ है. अच्छा, नंबर 17, where there are 2 lanes becoming 1 there will be no instruction. अब इधर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं होगा क्योंकि कॉमन सेंस है कि एक लेन 2 लेन से आगे जाके एक बन गई तो हम सब ने यानी कि अंदर जाना है. तो इसमें ऐसे रूल क्या है कि जिस कार का फ्रंट आगे है ना, by law they should go in the front. ठीक है, जब 2 lanes, when 2 lanes are coming into 1, the car that is ahead should be and the first one should go ahead, should be the first one. ठीक है, and there will be no instruction, तो कोई इंस्ट्रक्शन नहीं होगा. तो फॉलो द स्टेप्स ऑफ लेन चेंज, यानी कि सेफ्टी के लिए यही है कि जो लेन चेंज के स्टेप्स है ना, यूज़ दो स्टेप्स. तो मैंने इसकी वीडियो अपलोड की हुई है. अच्छा, इफ़ द लेन इज़ एंडिंग अगेन देयर विल बी नो इंस्ट्रक्शन. दोबारा ये कॉमन सेंस इस्तेमाल करें. लेन एंड हो रही है और इसमें बाकायदा आपको ना डॉटर लाइन, ब्रोकन लाइन यानी कि नज़र आती है, और कई दफ़ा साइन रोड पे ना एरो भी बने होते हैं कि लेफ़्ट लेन इज़ एंडिंग. आपको बताया जा रहा है कि मर्ज टू द राइट या मर्ज टू द लेफ़्ट, और उधर साइन भी होता है येलो ब्लैक में कि लेफ़्ट लेन एंड्स मर्ज राइट, और कई दफ़ा बड़ा सा साइन होता है, लिखा होता है कि लेफ़्ट लेन इज़ एंडिंग मर्ज राइट. तो यानी कि ध्यान करें, ऑब्जर्वेशन करें तो आपको पता चल जाएगा क्या करना है. तो उसमें भी ये है कि लेन चेंज के स्टेप्स फॉलो करें. अगर आपकी लेन एंड हो रही है, क्लियरली आपको मर्ज करना है और कोई आपको रास्ता नहीं दे रहा, दैन स्टे पुट, उधर खड़े रहें जब तक आपको सेफ कैप नहीं मिलता. पर आम तौर पे ना इन जगहों पे हर एक ना एक दूसरे को रास्ता देता है क्योंकि उनको पता है कहीं जा नहीं सकते आपका, दैट्स द ओनली वे, तो फिर आपको ना वो रास्ता देंगे. ठीक है. अच्छा, 19, sometimes you will turn in a street where it will not be apparent what the speed limit could be and the speed signs too far ahead. यानी कि जब आप टर्न करते हैं किसी गली में तो समझ नहीं आती कि ये 50 एरिया है या ये 60 एरिया, कुछ समझ नहीं आती. तो उन जगहों पे कई दफ़ा द टेस्टर will help you along by saying unless otherwise signed you are turning into a 40 किलोमीटर जोन, और 50 किलोमीटर, 70, जो भी लिमिट उस रोड पे होगी ना तो वो आपको बता देंगे. अगेन आपकी आसानी करें, हेल्प अलोंग करें. तो वो कह रहे हैं इफ़ यू डोंट सी एनी अदर साइन देन दैट इज़ द लिमिट यू विल फॉलो. जो भी टेस्टर आपको कह रही है उसी को फॉलो करेंगे. ऑब्वियसली इफ़ देयर इज़ अ रोड वर्क्स यू विल सी द रोड वर्क साइन, एंड अगर उन्होंने 40 का लिखा हुआ है तो आप अंडर 40 जाएंगे. ठीक है. तो ये यानी कि अनलेस अदरवाइज साइन, ठीक है, वो आपको बता रहे हैं. ये नहीं कि टेस्टर ने कह दिया 60 और आगे 40 लिखा हुआ है रोड वर्क्स का या किसी और वजह से, तो आपने फिर 40 पे जाना है. सही है ना. तो नंबर 20 है कि इफ़ यू सी emergency vehicles on the side of the road with lights flashing, the tester will not ask you to lower the speed to 40. कॉमन सेंस है, ये बार लो है कि when you are passing a flashing lights on the side emergency vehicles के हैं, तो जब उन्होंने आपने उनको पास करना है तो आपकी स्पीड 40 किलोमीटर/आवर होनी चाहिए. उसके बाद जब उन्होंने क्रॉस कर लिया तो then you accelerate gradually. अच्छा, एक और चीज़ है कि अगर आपकी if your lane is blocked, so there's one more thing, if your lane is blocked by parked cars or bus at a bus stop or roadworks, then there will be no instruction. ठीक है, common sense है. Yani if your lane is blocked, you need to do the lane change yourself. So if usually the left lane is usually blocked, so because the tester didn't initiate the instruction, they didn't ask you to merge into the right lane, but because it was blocked by whatever reason, do the lane change to the right, and when it is safe and there is clear space on your lane, you can lane change back to the left. ठीक है. तो अगर आपकी लेन ब्लॉक्ड है, सही है, किसी भी वजह से हो सकती है, पार्क कार्स की वजह से, ब्रोकन डाउन का या एक्सीडेंट की वजह से चीज़ें खड़ी होती हैं, या रोड वर्क्स हैं या कंस्ट्रक्शन है, फॉर वट एवर रीज़न अगर आपका लेन बंद है, और कई दफ़ा मोस्टली लेफ़्ट लेन ही होती है पर कई दफ़ा रोड वर्क्स की वजह से राइट लेन भी ब्लॉक्ड हो सकती है, तो फिर ऑब्वियसली यू विल फॉलो द इंस्ट्रक्शन और द डायरेक्शन ऑफ द ट्रैफिक कंट्रोलर्स. तो अगर आपकी लेन ब्लॉक्ड है तो आपने खुद से लेन चेंज करना. उधर आप टेस्टर नहीं आपको कहेंगे कि ये लेन चेंज करो. कॉमन सेंस है ना, उन्होंने शुरू से कह दिया था कि ऑन द रोड
फॉलो द रोड मार्किंग, रोड साइन, ट्रैफिक कंडीशंस. अब ट्रैफिक कंडीशंस में जो भी आ रहा है उसको फॉलो करें. सो दे विल बी नो इंस्ट्रक्शन. ये आपने खुद से करना होगा. ठीक है, तो फिर यानी कि लेन चेंज करके दूसरी लेन में चले जाएं. अब मैंने डी सेफ और आपकी लेन यानी कि क्लियर है तो अब वापस उसी लेन में आ जाएं. अनलेस के टेस्टर सेज इट्स ओके स्टे इन दिस लेन. एट द एंड ऑफ द टेस्ट वो पार्किंग में वापस आपको विक रोड की पार्किंग में यू लेके आएंगे. यू विल बी बैक एट द ऑफिस, विक रोड ऑफिस पार्किंग, and they will ask, say, find a safe spot to park the car and then make it safe. Headlights off and ignition off. And फिर वो कहेंगे कि we will meet you back in the office for the result. ठीक है. अच्छा, इसमें बस एक दफ़ा फिर मैं रिपीट कर दूँ कि जब आफ्टर द टेस्ट ये याद रखें. नंबर 1, the test is not finished until you park the car, ignition off, headlights off. ठीक है. The test is not finished until this has been done. ठीक है. And when you do the parking, even if the parking is a little bit not straight or too close to one side, that's okay. When the tester tells you, when just make the car safe, just make it safe. It means it is understood that they are happy with the way you park. They just want to get out of the car so you don't muck up. All right, so just listen to the tester and turn the car off. If pass, you will meet the tester inside Vic Roads office. During the test, if you fail, then the instructor has to drive back to Vic Roads. ठीक है. तो यानी अगर आपने if you fail the test on the drive, like immediate failure, or you had too many critical errors, or in the first stage the tester say you're not successful, तो फिर the instructor will have to drive back, which is very not nice at all. Don't like the feeling of when we come back when I'm driving. So, but sometimes when you've lost a lot of points, but you don't know until you go in the office, so that's where the tester will tell you whether you passed or not. Main cheez kya hai ki remember to stay relaxed, stay alert, pay attention. Okay, pay attention to the instructions, and if confused, ask. Really important to ask if you're confused. Don't just keep driving, because you will make mistakes. And really important to, and one thing, if the instructor is repeating, and it's a good idea to repeat the instruction yourself as well. And there's something called commentary driving as well. So when during your driving, you can talk to yourself, remind yourself what things you need to do, like the head check for the bicycle lane, for the lane changes and all that. Looking at the mirrors again and again, yeah. So inshallah, hopefully this will help you. It has helped many other people. And let me know in the comments how you find it. All right, till the next video. Allah Hafiz. Take care.